God knows what the best thing is for man. और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम क्या है। He knows us better than we know ourselves. और हम अपने आप को उन चीजों से जांचते हैं। And He loves us more than we love ourselves. और परमेश्वर जो है वो हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। Yeah, He always leads us according to the plan that is much better than our plans. और वो हमारे साथ में जो हम योजनाएं बनाते हैं उनसे भी उत्तम योजनाएं उसकी हमारे साथ होती है। And obeying His will is the good and perfect way. और उसके आज्ञा को मानना हमारे लिए मजबूती को दर्शाता है। Yeah. So we must find God's will. इसलिए हमें परमेश्वर की योजना को जानना है। Before we obey Him. और इससे पहले हम उसकी बातों को माने। Yeah. First, it is because the order is important in all things. और वो जरूरी है कि हम उसके जो आज्ञा हैं उनको पूर्ण तरह से माने। Yeah. Jesus taught us what we must do as the first priority. और यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें पहले वो काम करना है जो हमारे लिए उत्तम है। Because we as people who have received salvation have already been greatly served, greatly loved by God. और क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया है और वो हमसे प्रेम करता है। We must understand and forgive others with the love of God. और हमें एक दूसरे को समझना अनिवार्य है और एक दूसरे को क्षमा करना भी अनिवार्य है। And therefore Jesus said this. इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, Matthew chapter 5 verses 23 to 24. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 23 और 24 इस प्रकार से कहता है, Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, और वहां लिखा है, इससे पहले कि आप वेदी पर अपने भेंट को लाए, आप अपने भाई के पास जाए, और यदि उसके मन में तुम्हारे पास कोई कड़वाहट है, पहले उस बात से आप क्षमा मांगे। leave your gift in front of the altar, और अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ और उससे मिलने को जा। first go and be reconciled to your brother. पहले अपने भाई के पास जा और उससे मेल मिलाप कर। Then come and offer your gift. तब आप आओ और अपनी भेंट को आप परमेश्वर को चढ़ाओ। In other words, we must reconcile with our brothers before we give worship to God. और इससे पहले हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाए, हमें जरूरत है हम अपने भाई से मेल मिलाप करें। Moreover, we try to achieve a great work by gaining many viewers and many things. और याद रहे, जब हम अपना मेल मिलाप कर लेते तभी हम बहुत सी चीजों में विजय प्राप्त करते हैं। And Matthew 6 verse 33. और जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 33, Jesus said, but seek first his kingdom and his righteousness. पहले आप परमेश्वर और उसके धर्म के राज की खोज। Yeah, and all these things will be given to you as well.
और ये सारी जो चीजें हैं फिर आपको परमेश्वर दे देगा. In other words, today, before we worry about our daily needs of clothing, food, shelter, we must seek first God's kingdom and His righteousness. और पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, तब जो सारी चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी. And live an upright life. और आपको अपनी जिंदगी को धार्मिकता के अनुसार बिताना है. But occasionally we say too many things about others. Kindly give me 1 minute. विनयन को बोलो कि दूसरी. Okay, again? Wow. Hello? Actually, on my other phone, the call was coming, so okay. I Yeah. Two disconnected mobile from that phone. number. No one should disturb. One is volume down. Yeah. Okay, and live an upright life. और हमें अपने जो जीवन को इस प्रकार से जीना है. But occasionally we say too many things about others. बहुत सी बार हम बहुत से लोगों के बारे में अलग-अलग बातें बोलते हैं. Matthew 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय verse 5, Jesus said, "You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." और इससे पहले कि आप अपने भाई की आंख का लट्ठा देखते हैं, उससे पहले आप अपनी आंख के लट्ठे को देखें और उसको निकालें. Simply put, we must try not to find fault in other people, but instead we must see the problems that lie within us. हमें दूसरों में कमी ढूंढने से पहले जरूरत है कि हम अपने अंदर की कमियों को देखें. And 1 John chapter 5 verse 14. और जब आप पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 7 से जब आप पढ़ेंगे, When we pray according to God's will in this manner, we will receive answers. और जब आप परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, तब परमेश्वर उन कार्यों को आपके लिए पूरा कर देगा. Yeah. So prayer is to ask to God according to God's will. और प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चीजों को मांगना. So we must first find God's will before we obey Him. और याद रहे, हमें जरूरत है परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा को मानना. And second, what is the reason why we must obey God to this extent? और क्या कारण है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए. Yeah. Proverbs 16:9. नीति वचन उसका 16 अध्याय वचन 9. Yeah. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. और जो मनुष्य जो है वो अपने मन में विचार करता है, परंतु उनको पूरा परमेश्वर करता है. Yeah, it is because all things run according to God's will. कारण क्या है? क्योंकि जो भी चारों तरफ होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है. Now your all lives is ruling of God. और जो परमेश्वर ये जो हमारे ऊपर अधिकार रखता है. And John 15 verse 7. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वचन 7. When you remain in the Lord and the word of the Lord remain in you, ask whatever you wish and it will be given you.
जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, जो तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Yeah, we can obey God when you have found God's will. आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं जब आप परमेश्वर की उन बातों को जान लेते हैं। Yeah, if we are willing to find God's will, He will tell us. और याद रहे, जब आप परमेश्वर की योजना को ढूंढोगे तब परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। Now, are you seeking for God's will? क्या आप परमेश्वर की योजना को ढूंढ रहे हैं? Yeah, He has a very important plan and will for your life. और परमेश्वर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे प्लान और योजनाएं हैं। Yeah, there are God's plan in your church and family and your life. और याद रहे, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अच्छे विचार किए हैं। Yeah, He is running everything now. और वो आपकी हर एक चीज को वो निहार रहा है। Yeah. And then, second, how can we obey God? और दूसरी बात ये कि हम परमेश्वर का किस रीति से आदर कर सकते हैं, या हम किस रीति से उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। First, what is most important is faith. सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। When we can obey as much as we have faith. जितना हमारा विश्वास है, हम उसी रीति से उसकी आज्ञा को मानते हैं। Yeah, this is because God gives us things that are far better than what we want. और परमेश्वर जो हम चाहते हैं हमें उससे बढ़कर देता है। And Genesis chapter 22 verses 1 to 15. 22 अध्याय वचन 1 से लेकर 15 तक। Yeah, when he was being tested, Abraham offered Isaac by faith. और जब अब्राहम को परखा गया कि वह अपने बेटे की बलि करके उसको चढ़ाए, तब वह धर्मी पाया गया। This is because he believed in God's promise. कारण क्या है? वो उसने परमेश्वर में विश्वास किया। God already spoke to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया। It is through Isaac that your offspring will be reckoned. और वहां पर उसने इस प्रकार से कहा कि इसहाक के द्वारा आपकी इन सारी बातों को धर्मी जाना गया। Therefore, Abraham believed that God could raise Isaac from the dead. और इसलिए क्योंकि अब्राहम ये विश्वास करता था कि परमेश्वर चाहे तो इसहाक को वह मुर्दों में से भी जिंदा कर सकता है। Yeah. And second, we need to realize that God values the future. और हमें इस बात को जानना है कि भविष्य क्या है। Yeah. And thirdly, we must be able to sacrifice ourselves and और दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए निछावर करना है। yeah, and endure hardships, although it may be difficult right now. और याद रहे, आपको उन समस्याओं को भी आनंद लेना है जो आज आपको दिखते हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं। Yeah, sufferings and sacrifices, hardships. याद रहे, आप अपने जो बलिदान है उन्हें कठिनाइयों के साथ में भी आप उसका आनंद ले। Yeah, we can endure them, through it may be difficult right now.
और याद रहे कि आज के समय में भले ही वो हमारे लिए कठिन हो, परंतु हमें उनका आनंद लेना है। Yeah, because we believe that God is living with us. और याद रहे हमें इस बात का विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Yeah, Genesis chapter 6 verses 14 and 19. जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 14 और उसका 19 तक के, Yeah, God commanded Noah to build an ark on top of a mountain. और परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया था कि आप इस जहाज को पहाड़ की चोटी पे बनाना है। Yeah, he commanded build an ark on top of mountain. और उसने उसे आज्ञा दिया कि आप जो जहाज है उसे आप पहाड़ की चोटी के ऊपर बनाना है। Yeah, though he faced the difficulty of being ridiculed by people, Noah still obeyed God. और यहाँ तक कि उसने बहुत सी समस्या का सामना किया क्योंकि लोगों ने उसका मजाक और ठट्ठा उड़ाया था। And with that, he saved himself and his family. और परंतु उसी के अनुसार उसने अपने और अपने परिवार को बचाया। And the whole wide world became his, and he became the wealthiest man in his time. और उसी के द्वारा समस्त संसार बचाया भी गया और वो समस्त संसार में सबसे ज्यादा धनी पुरुष जाना गया। Yeah. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. और उत्पत्ति 12 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 3 तक के जब हम पढ़ते हैं, God commanded Abraham to leave his country, his people, and his father's household. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़ और मेरे पीछे हो ले और उस देश को जा जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। It was a difficult decision, and yet Abraham, with faith, obeyed God. और ये उसके लिए कठिन बात थी, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Yeah, through various tests, God raised him as a man of great faith. और उसने विभिन्न परिस्थितियों से परमेश्वर ने उसको उठाया और उसे विश्वासियों का पिता ठहराया। And he accomplished great success both spiritually and physically. और परमेश्वर ने उसे आत्मिक और भौतिक दोनों चीजों से उसे नवाजा। Moreover, God formed a great nation in the land of Canaan through Abraham's seed according to his promise. और परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार अब्राहम के द्वारा एक बड़े देश को बनाया। I know Apostle Paul, who lived in complete obedience to Christ. और अब्राहम ने पूरे विश्वास योग्यता से अपने जीवन में वो आज्ञाकारी बन के रहा। I said about Apostle Paul. और जब हम देखते हैं पौलुस के बारे में, Yeah, he became an example to Christians by obeying God his entire life. और वो समस्त मनुष्य और विशेषकर मसीह समाज के लिए आदर्श का कारण बना रहा, परमेश्वर के हर एक वायदे को मानते हुए। Philippians chapter 3 verse 8. और जब हम पढ़ते हैं उसकी पत्री और 3 का 8 में, He considered everything he boasted about rubbish. और उसने कहा कि मेरे लिए हर एक चीज जो है वो व्यर्थ है। Yeah. And he even went before death if it meant lifting up Christ. और मरने से पहले भी उसने अपने जीवन से मसीहा को महिमा दिया। So, Acts chapter 20 verse 24,
he staked his life for the world missions. और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय और वहां पर देखते हैं कि उसने अपने जीवन को सुसमाचार के लिए दे दिया. Yeah, he met disciples completely devoted to Christ, as written in Romans chapter 16. और जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय में उसने अपने जीवन को पूरी रीति से सेवा के लिए समर्पित किया. Yeah, God attached many devoted disciples to him. और उसने बहुत से जो चेलों के जीवनों को छुआ. As a result, he enjoyed the blessing of world evangelization. और उसने पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार का आनंद लिया. May God attach very devoted disciples on you, all pastors. और परमेश्वर यह आप सब पर आपके जीवन के द्वारा बहुत से आनंद के भरे हुए चेलों को आपके जीवन में दे. Yeah. As you are very important disciples in the eyes of God, God will bring very, very devoted disciples to you. और याद रहे परमेश्वर आप बहुत से आशीष देगा और जो आपके जीवन में अद्भुत और विशेषकर आपको अच्छे अद्भुत चेलों से भरेगा. Just like this, obedience is impossible unless we have faith and realizations. और याद रहे जब हम अपने जीवन में इन बातों को जान लेंगे और समझ लेंगे तब ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में आज्ञा जो है वो आशीषों को लेकर आएगी. Yeah. If God tells us to go up to a mountain and build an ark, can you obey him? और यदि परमेश्वर आपको कहे कि जा और पहाड़ के ऊपर जाकर मेरे लिए एक जहाज को बना तो क्या आप उसकी आज्ञा को मानेंगे? God tells you to leave your country, your people, and your father's household. और यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने माता पिता के घराने को छोड़ और मेरे पीछे हो ले और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, Can you obey him? क्या आप तब भी उसकी बात को मानेंगे? God tells you to surrender everything and follow Christ. Can you really, readily obey him? और यदि परमेश्वर आपको कहे और तो क्या तब भी आप उसकी आज्ञा को मानेंगे? Yeah, can you surrender everything you have for Christ? क्या जो आपके लिए जीवन में मसीह के लिए है क्या आप उसको सब कुछ समर्पित करेंगे? God has prepared good things for those who obey him with faith despite themselves. और याद रहे परमेश्वर उनके लिए हर एक चीज उत्तम करता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं. Yeah, God has prepared the better things for you. और याद रहे परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम चीजों को बनाया है. Yeah. And God has an important purpose for your life. और परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति महत्वपूर्ण उद्देश्य है. And he reveals it to you when you obey his command. और याद रहे वो आपके जीवन पर उस समय सारी बातों को उड़ेलता है और दिखाता है जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं. At times it may seem as if he is putting us through pains when in fact he is making himself known to us. और याद रहे परमेश्वर तब सारी चीजों को करता है जब हम उसको जानने लगते हैं. Yeah, if we are disciplined, if we are not disciplined, we are illegitimate children, and that is why God reveals his will to us by way of discipline.
और याद रहे, परमेश्वर हमारे जीवनों पर कब अपनी चीजों को उड़ेलता है, दिखाता है, जब हम उसके प्रति वफादार होते हैं, Yeah, we are God's children. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So God is giving us discipline. और याद रहे, परमेश्वर ही है जो इन चीजों को हमारे जीवन में करता है। Yeah, through the discipline, we became God's true children and Jesus' disciples. और याद रहे, अनुशासन के द्वारा ही हम परमेश्वर के बच्चे और यीशु मसीह के चेले बनते हैं। So discipline is love for us. That is very important training. और याद रहे, जो अनुशासन है वो हमारे लिए बहुत ही उचित है। Through the discipline, we are maturing, growing up as a true Christian and a true disciples of Christ. और याद रहे, अनुशासन के द्वारा ही परमेश्वर हमें उसके सही चेलों के रूप में ढाल रहा है और अपनी संतान के रूप में हमें बना रहा है। Moreover, it may seem as if God is turning away in times of trouble when in fact He wants us to experience His power for real. और याद रहे, जो है उसकी जो सामर्थ को हम लोग पहचानना है और जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। Yeah, He is undoubtedly listening to the prayers of His children. और परमेश्वर बिना किसी रुकावट के अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है। After all, we will come to experience God's power. और हर एक बात के लिए हम परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करते हैं। Yeah. On the other hand, disobedience causes us to lose what is true good. और हमें इन चीजों को देखना कि क्या सही है और क्या गलत है। For example, King Saul is infamous for being a king who failed because of his disobedience. और आपको पता है कि राजा साउल जो है वो अपने गलत निर्णय के द्वारा राजा होने के अधिकार को खो बैठा था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। 1 Samuel chapter 15 verses 1 to 22. और जब आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय वचन 1 से लेके 22 तक के। On top of this, he gave sacrificial offerings instead of Samuel when Samuel was running late. और हम ये देखते हैं क्योंकि शमूएल जो है, शमूएल की उपस्थिति में उसने साउल ने जो बलि के लिए सामान को अलग किया था। Because he was unaware of what was important, he thought that just such actions would be beneficial to him. और क्योंकि उसने इस बात को नहीं जाना था कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, कि क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानना या तोड़ना। God wanted obedience more than sacrifice. और परमेश्वर बलिदान से अधिक वो आज्ञा मानने को पसंद करता है। Yeah. Because Saul turned aside from God's word, God too abandoned Saul. और हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर की उस आज्ञा को जब मानते हैं तो वो किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। And he did not allow him to become king, the king. और आप ये देख सकते हैं कि जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तब उसने उससे राजा बनने का अधिकार भी छीन लिया। As you know, during the time of the early church, Ananias and Sapphira too failed God with their act of disobedience. और जब हम पहली शताब्दी की कलीसिया में देखते हैं कि किस प्रकार से अननियास और सफीरा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा
और परमेश्वर के खिलाफ वो चले। And in Acts chapter 5, verses 1 to 11, we can find that story. और ये इस कहानी को हम प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 11 तक के पढ़ सकते हैं। They lied to Holy Spirit in regards to offering. और हम देखते हैं कि बलिदान चढ़ाने के स्थान पर पवित्र आत्मा किस रीति से कार्य करता है। They lied and said they were giving all of the money while keeping back part of it for themselves. और उन्होंने अपने आप को छोड़कर सारी चीजों को देना चाहा। They did so because of the ulterior motive hidden inside of them. क्योंकि उनके मन में अंदर अलग प्रकार की योजनाएं बैठी हुई थी। Yeah, God knows our ulterior motives hidden. Yeah, or. और याद रहे परमेश्वर हमारे मन में क्या बातें हैं उनको भी भली भांति जानता है। Yeah, when giving offering at church, we fear that we are giving too much if we think that we are spending the money that we have worked hard for. और याद रहे जब चर्च इन बातों को सोचता है कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, और जब वो इन बातों के ऊपर सोचने लगता है तब उनके जीवन में गिरावटें आने शुरू हो जाती है। Offering is simply faith. और याद रहे हमारा जो बलिदान है वो हमारी आज्ञा मानना होना चाहिए। Without faith, we can present offering to God. We cannot. और हमें परमेश्वर के सम्मुख भावते हुए बलिदान चढ़ाने हैं। So offering is simply faith, I think. और जो बलिदान है वो विश्वास है। When we give offering, we express our faith. और याद रहे जब हम अपने दान को चढ़ाते हैं वो हमारे विश्वास को दिखाता है। I do not depend on money, but on God alone. और मैं धन के ऊपर विश्वास नहीं करता परंतु मेरा विश्वास परमेश्वर पर है। Yeah, I worship only God. Yeah, I worship only God. This expression is offering. और मैं सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और उसकी आराधना करता हूँ। Yeah, when we give offering, we express our faith. और ये हमारे विश्वास को दिखाता है। Those without faith can never give sound offering. और याद रहे यदि हमारा विश्वास सही नहीं है तो हमारा बलिदान भी ठीक नहीं है। We have no choice but to disobey God if we are unaware of the spiritual blessing that comes when we give offering. और याद रहे हमारा विश्वास उस समय दिखाई देता है जब हम अपनी भेंटों को जब हम चढ़ाते हैं। Yeah, we have no choice but to disobey God. Yeah, if we know, if we are unaware of the spiritual blessing that comes when we give offering. और याद रहे जब हम अपने दान को चढ़ाते तब हमारी आत्मिक आशीष से और हमारा आत्मिक जो जीवन है वो भी डेवलप करता है। Yeah, disobedience is unaware of the spiritual blessing. और याद रहे अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर के निरादर को लाती है। Yeah, disobedience is a result that comes because we haven't discovered God's will yet. और अनाज्ञाकारिता इस बात को दिखाती है कि हमने किस बात में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। It's not easy to discover and obey God's will in every little thing, but there is an easy way. और याद रहे कई बार हम ये सोचते हैं हर एक छोटी बड़ी बातों में हमें बातों को मानने का जरूरत नहीं है, परंतु हर एक बात में परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है।
Yeah, so and then how can we discover God's will? और हम किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं? Yeah. Yeah, how can we discover God's will? और हम किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? First, James 1, uh, verses 13 to 15. और जब आप पढ़ेंगे वचन को विशेषकर याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 13 से लेकर 15 तक, God's will is good. और वहां पर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो अच्छी है। Fighting and winning against others is never God's will. और याद रहे, अपने भाई से लड़ाई करना यह कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। It is God's will to forgive even those who have wronged us greatly. और याद रहे, हम लोगों के तो की हर एक बात को जानना ही परमेश्वर की इच्छा है। And praying for them to renew themselves is God's will. और उसकी इच्छा को लगातार जानना बहुत जरूरी है। We just need to choose this path. और हमें उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। And second, let's take a look at Matthew 5, verse 9. और आइए हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 9 को। God's will is peace. परमेश्वर की जो इच्छा है वो शांति है। Yeah. Peacemakers will be called sons of God. और जो शांति को बनाते हैं वह परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Only through the gospel we can reconcile them each other. और याद रहे, हम सुसमाचार के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। So we can become peacemakers with the gospel. और याद रहे, हम सुसमाचार के द्वारा ही शांति के दूत बन सकते हैं। Yeah, and 3, God's will is in His word. और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है वह उसका वचन है। Anything obscure is not God's will. और याद रहे, जो गलत है वो उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। God's will is unfailing. और याद रहे, परमेश्वर का जो इच्छा है वो कभी भी फेल नहीं होता है। We can find answers to all problems in God's word. और याद रहे, हम हर एक समस्या का जो समाधान है हमारा वो उसके वचन में हमें मिलता है। In every worship, your church members can find the answers to all their problems in perfect message, God's word. और याद रहे, परमेश्वर के वचन को जो वो संदेश को सुनते हैं उसमें अपनी सारी बातों का उन्हें उत्तर मिल सकता है। Yeah, through the word of God, we can find God's answer. और याद रहे, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर का उत्तर मिलता है। Yeah, there is God's will in His word. और याद रहे, उसके कामों में उसकी इच्छा होती है। And 4, God's will is fulfilled in believers who pray. और याद रहे, परमेश्वर की जो इच्छा होती है वह उनके जीवन में पूरी होती है जो उससे प्रार्थना करते हैं।
Yeah, the reason why we emphasize scheduled prayer and continuous prayer, 24 hours prayer, is that God's will can be found in the midst of prayer. और याद रहे जो परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो अलग अलग रीति से होती है, और हम इन सारी बातों का हम परमेश्वर के बीच में इन सारी चीजों को हमें उत्तर मिलता है. Yeah, that is why we can discover God's will in His word and prayer. और याद रहे परमेश्वर की जो इच्छा है वो उसके वचन में है, और उसके वचन को हमें तब मिलता है जब हम प्रार्थना करते हैं. So please make a tower of prayer in your time, in your daily lives. और इसलिए आप अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना करना आप शुरू करें. Yeah, every night I'm describing the message always. और प्रत्येक रात को पासवान जो है वो परमेश्वर के वचन का और उसके संदेश का अभ्यास करते हैं. Yeah, through that, the writing down the message, I can focus on God. और याद रहे जब वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तब वह परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं. Yeah, and 5, God's greatest will is forgiving. और पांचवी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी जो इच्छा है वो है क्षमा करना. Matthew 5, verse 24. मती उसका 5 अध्याय का 24 वचन. And after the Lord's Prayer, Jesus said about the forgiving. Matthew 6, verses 14 to 15. और जब हम देखते हैं मती रचित सुसमाचार में भी और इन बातों को देखते हैं 6 अध्याय 14 से लेकर 15 तक के कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करने के बारे में बताता है. And also, God's greatest will is saving the sinners. और याद रहे परमेश्वर की बड़ी आज्ञाओं में से ये भी है कि हम पापियों को क्षमा करें. Yeah, we can save them with the gospel. और याद रहे हम उन्हें सुसमाचार के द्वारा देख सकते हैं. Luke chapter 15, Jesus said about this. और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं. And God's greatest will is preaching the gospel for this. और परमेश्वर की बड़ी आज्ञा ये है कि इन बातों के द्वारा हम उसके संदेश को आगे बांटें. So Jesus commanded, go and make disciples. Matthew 28, verses 18, 9, 20 to 20. और जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 18 से 20 तक के, वहां पर आपको महान आदेश के बारे में जो यीशु ने अपने चेलों को दिया था उसके बारे में आप देखेंगे. And Acts chapter 1, verse 8, you will be witnesses to the ends of the earth. और प्रेरितों 1 के 8 के अनुसार आप यीशु मसीह के गवाह पृथ्वी के छोर के अंत तक के होंगे. And Matthew 24, verse 14. और मत्ती उसका 24 अध्याय जब आप पढ़ोगे आपको इन बातों का देखने को मिलेगा. This gospel will be proclaimed to all nations. और ये जो संदेश है वो हर एक जगह बताया जाएगा. In other words, winning souls and preaching the gospel, for this is the greatest will of God. और याद रहे इस वचन को बांटना सुनाना यही सबसे बड़ी सेवा है. Therefore, when we are standing at the crossroad of choices, if we choose the one that is beneficial to the gospel. और याद रहे यदि हम इस बात को बताते हैं तो ये सुसमाचार की बढ़ती के लिए बहुत अच्छा है.
and the one that is beneficial to evangelism and missions. और वो व्यक्ति जो सुसमाचार के लिए और सेवकाई क्षेत्र के लिए भावुक रहता है, And the one that glorifies God. और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को करे, Then answers will continue to come. और तब जो है आपको उत्तर प्रतिपल आपको मिलता रहेगा. Yeah. You are obeying to his will now और अब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, because you are trying to share the gospel to your peoples. और कारण क्या है? क्योंकि आप अपने लोगों के मध्य में उस सुसमाचार को सुनाना चाहते हैं. Many thirsty souls are waiting for the gospel now. और बहुत सी ऐसी आत्माएं जो सुसमाचार सुनना चाहती है, वो भी अभी अनभिज्ञ है और सुसमाचार से बहुत दूर है. God wants use you to save them. और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए इस्तेमाल किया कि वह उनको बचा सके. So please devote yourselves to sharing the gospel to your people. और इसलिए जरूरत है कि आप अपने लोगों को उद्धार देने के लिए उनके बीच में अपने परमेश्वर के संदेश को आप बताएं. And number 4, there are requisites for obedience. और चौथी बात आप ये देखते हैं कि इसमें एक जब आज्ञा मानते हैं उसमें कई चीजें हमें देखने को मिलती है. Yeah. First, we need the eye to observe. और पहला है कि हमें ऑब्जर्व करने की आंखें होनी चाहिए. Yeah. Exodus 14, verses 13 to 14. आज जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय वचन 13 से लेकर वचन 14 तक के. When the Red Sea is standing in front of us, just as it did for the Israelites, we must not act on impulse and start resenting God. और हमें इस बात को देखना है कि जब हम परमेश्वर के वचन में उसके सामर्थ्य में बढ़ते हैं, तब हमें परमेश्वर को अपने जीवन से लगातार प्रकट करना है, ना कि उसकी बातों को अनदेखा करना. We must be the people of prayer who cry out to God, just as Moses did. और हमें वो व्यक्ति होना है उस प्रकार का जिस प्रकार से मूसा था. Yeah. The people resented God, but Moses cried out to God. और याद रहे जो मूसा था वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था. Why? He has eyes to observe. क्योंकि उसने अपने जीवन में अगर कुछ कमाया था वो ये था, परमेश्वर ने उसे देखने की क्षमता दिया था कि वो लोगों को जान सके. Yeah. When we face crisis, we should observe there is what is God's will. और जब हम अपने जीवन में समस्याओं को देखते हैं तो उन समस्याओं के बीच में हमें परमेश्वर की योजना को जानना है. So, stopping there and pray to God. और याद रहे हमें परमेश्वर के साथ अपने दिन को शुरुआत करना है, उसके साथ ही चलना है. Lord, we want to know your will for us. और परमेश्वर हम जानना चाहते हैं कि आपकी योजना और इच्छा हमारे जीवन में क्या है. There is a good will for you. और याद रहे उसकी आपके जीवन के लिए अच्छे विचार हैं. Second, our decision is important. और जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं. Yeah. Abraham and his nephew Lot had different standards
when making decisions. और आप ये देख सकते हैं कि अब्राहम और उसके भतीजे लूत के अंदर बहुत सी बातें भिन्न पाई जाती थी जो उनको अलग बनाती थी। In Genesis chapter 13, we can find that. और जब हम इसे पढ़ेंगे तो इन घटनाओं को हम लोग इन आयतों में पढ़ सकते हैं। Unaware of God, Lot chose what was best in his physical interest. और आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भौतिक रीति से आपको जिन चीजों से आशीषित किया है, आप उन चीजों के ऊपर अपने ध्यान को दें। However, Abraham entrusted everything to God and received God's guidance. और अब्राहम ने क्या किया अपने जीवन से, उसने परमेश्वर की सारी बातों में विश्वास किया और उसके ऊपर भरोसा रखा। Yeah. And number 3, the method is important. और तीसरी बात यह है कि जो हमारा तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। Yeah. The workers of Antioch church honestly prayed to receive the guidance of the Holy Spirit. और आपको यदि पता होगा कि अंत्योकिया की जो कलीसिया है वह उत्तर पाने के लिए विश्वास योग्यता से प्रार्थना कर रही थी। Yeah. In Acts chapter 13, प्रेरितों की पुस्तक उसका 13 अध्याय में हम देखते हैं, there they prayed to God to be led by the Holy Spirit. और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया कि वह परमेश्वर में पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। They fasted and prayed continually. और उन्होंने बिना रुके लगातार उपवास प्रार्थना में बैठे वो प्रार्थना करते रहे। Yeah, as a result, the Holy Spirit appeared to them and instructed for the direction of missions. और जैसे पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया तो वो पूरी रीति से अचंभित रहा कि किस रीति से इसके जीवन में काम हुआ है। So they did missions according to the instructions of the Holy Spirit. और उन्होंने अपने सेवकाई क्षेत्र को उस रीति से लेके चला जिस प्रकार से परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई किया। Before making decisions, we must first pray in order to receive the guidance of the Holy Spirit. और हमें कुछ भी कार्य करने से पहले पवित्र आत्मा की सहभागिता लेना है कि पूछना है कि परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को हमारे साथ में चलाए। And then we will make the right decision. तब क्या होगा, मैं और आप सही निर्णय ले पाएंगे। Yeah. So whenever we go to do evangelism camp, we must first look for God's plan for those fears. और जब वो कहीं पर भी प्रार्थना करने जाते हैं तब वह ये जानना चाहते हैं परमेश्वर से कि उनकी इच्छा परमेश्वर के प्रति क्या है। There is God's plan and will in our path, and day, D-Day, and the place. और हम ये देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने उनके जीवन में किया और किस रीति से वो कार्य करता है। Yeah, God hided very important disciples in those fears. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने अच्छे और उत्तम दासों को अपनी उपस्थिति में सुरक्षित अलग करके रखा था। When you go and shine the light of Christ, God will attach them anew. और याद रहे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और उसको अपना केंद्र बनाकर चलते हैं तब आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से अद्भुत कार्य कर रहा है। And in every field there is prepared disciples. और हम ये देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पे जो है जो लोग हैं वो परमेश्वर के लिए चेलों को तैयार करते हैं। Fourth, the purpose is very important. और याद रहे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हमारे काम करने का उद्देश्य क्या है। Yeah. We must do all things for the glory of God.
और हमें जो भी करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों की पत्री 10:31. और उसका 10 अध्याय का 31 वचन। Yeah. Do all things for His glory, whether और याद eating रहे कि जो भी कार्य or करें drinking. वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। Yeah, acting instantaneously in this manner will return to us as our lifelong answer. और याद रहे इस अनुसंधान के द्वारा हम अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर से नजदीकियां हमारी बढ़ती हैं। We'll gain many benefits if we obey God's word. और याद रहे आपके जीवन में बहुत सी आशीषें उतरती हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानते हैं। However, why is it that we find ourselves unable to obey God's word? तब क्या होता है हम अपने जीवन में बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर से और उसकी योजना से अलग किया हुआ है। It is because the experience and knowledge that we have accumulated from the past until the present have turned into preconceived notions. और याद रहे हम इन बात को देखते हैं कि हम लोग अपने आप को अलग अलग परिस्थिति में रखकर भी परमेश्वर में संभाल के रखता है और वह हमें विपत्तियों में नहीं पड़ने देता है। And habits and second nature. और ये है उसका दूसरा स्वभाव। If we surrender these before the gospel, then we can become believers who discover and obey God's will. और जब हम इन बातों को बताते हैं विश्वासियों में तब वह उसके प्रति कई चीजों को हम उसके जीवन में आशीषों को देखते हैं कि परमेश्वर उसे किस रीति से उसके जीवन को महत्व बना रहा है। Yeah, we must depend on only God. और याद रहे हमें पूर्ण रीति से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है। Not our knowledge or experience. ना कि हमारे अनुभव के ऊपर और हमारे ज्ञान के आधार पे। God can change occasionally, always. और याद रहे परमेश्वर लगातार उचित समय पर हमारे लिए कार्य को करता है। Starting now, let us live as disciples who obey God's word. और आइए हम लोग उस रीति के जीवन को बिताए उस वचन के अनुसार में कि हम यीशु मसीह के चेलों के रूप में अपने जीवन को बिता रहे हैं। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Dear Lord, please help us live as disciples who obey your word. और प्रभु आप हमारी मदद करें आपके चेले होने के रूप में। We want to know your will in every steps we take. और प्रभु हम आपकी इच्छा को अपने हर एक उन कदमों पे के साथ पूरा करना चाहते हैं जो हम तेरे लिए उठाते हैं। We believe that your good plan for us. और हम ये विश्वास करते हैं कि आपके पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं। Please open our spiritual eyes so that we may see your will. और प्रभु आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम तेरी बातों को जान सके And obey to your will. और हम तेरी बातों को मान सके। Receive the glory. और तेरी महिमा हो। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। So now break time, मुक्सनीम। Let's take a break 10 मिनट time. का ब्रेक है और 10 मिनट के बाद में कौन है जो गीत गाएगा?